Uh, Today is our class 5 of web designing. So let's get started. अच्छा हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किया है वो हमने किया है नोटपैड का right to write any HTML code or anything, but basically we're not supposed to use notepad when we are big web designers because notepad के अंदर we cannot create that big of websites. इसके अंदर छोटी छोटी मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं, so that we can do inside notepad but we cannot do it, we cannot do the big websites here. That's why we need a professional coding software. People mostly use Visual Studio or Visual Studio Code. We will be doing it on Visual Studio Code. We are going to go on to Google. Okay. New tab pull up. Here you will type VS Code download. Alright. Press enter. And then you will be able to see this link, this one, Visual Studio link. You will click on that. And then it will take you to this. Now अब आपके पास अगर MacBook है, so you can go on to this download option, and अगर आपके पास Windows laptop है, so that you can go on to this one. Windows 7 में install नहीं होता, it will be only installed if you have Windows 8 या Windows 10 या Windows 11 or any further. Okay, so you will click on this, and once you click on this, ये आपके पास एक छोटा सा डाउनलोड का एक वो खोलेगा, क्योंकि यहाँ राइट ये लेफ्ट बॉटम पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक डाउनलोड का आएगा. It's going to take a little time, but then it will download here. Okay, see, it asks me where I want to download it, तो मैंने इसको कहीं पे भी कर दिया, डाउनलोड पे कर दिया, सेव किया, and okay, now see, यहाँ if you see at the very bottom here, it's downloading. Once it's downloaded, आपको इस पे क्लिक करना है. क्लिक करोगे देन इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट. अच्छा, वंस इट इज इंस्टॉल्ड फॉर यू, तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर यू कैन टाइप VS या विजुअल स्टूडियो जो भी, एंड यू विल सी दिस एप्लीकेशन. ओके, व्हाट यू विल डू, यू विल बी क्लिकिंग ऑन टू दैट. ओके, what you will do, हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू में एंड यहाँ लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड, and it will open up the application for you. It's taking a little time, but afterwards it will open for you. Okay. So the first screen that you will be seeing, वो आपको कुछ themes दिखा रहा होगा जो आप choose कर सकते हो. 4 themes दिखाएगा, light, dark, colorful. ये यहाँ पर जो 4 themes दिखा रहे हैं, it's taking a little bit time to load, but yeah, this one dark modern है, the one that I'm using right now. Light modern है, light high contrast है, dark high contrast है. So whatever theme you want, you can choose that one. I like the dark modern one, that's why I'm clicking on to that one. देन अब हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. उसके लिए वी विल गो टू आवर फाइल मेन्यू, वी विल गो टू दिस ऑप्शन न्यू टेक्स्ट फाइल, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा हम अपनी लैंग्वेज पर हैं HTML की, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज HTML. हम जब नोटपैड में काम कर रहे थे तो हमें नोटपैड के ऊपर यहाँ HTML के ये दो टैग लगाना बहुत जरूरी था. यहाँ पर फायदा ये कि हमें ये दो टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जब आएंगे, you see यहाँ select a language लिखा हुआ है. When you click on this select a language, तो यहाँ पे ये जितनी भी languages, JavaScript, Docker, Dart language है, Compose, CSS, ओके, जो भी है C++, ये सारी यहाँ पर अवेलेबल है. तो हमें यहाँ पर आगे सिंपली टाइप करना है HTML. You see this first one, when you click on that, तो अब ये हमारे लिए इसने HTML की फाइल क्रिएट कर दी. ओके, हमें इसको बस सेव करना बाकी है. Now let's get started. अब इसका फायदा क्या है, I'm going to zoom this in a little bit. Okay, I hope you're able to see now. Uh,
ऑलराइट, नाउ वी कैन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। अब मुझे यहाँ पे HTML के कोड लगाने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा ये है मेन कि हमें जो ये वाला साइन लगाना पड़ता था ना, ये अब हमें नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल H1 का टैग लगाना है, मैंने H1 लिखा और सी इसने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये वाला H1 की बात कर रहे हो, मैं इस पर एंटर करूंगी तो सी इसने मुझे खुद से दोनों टैग्स खुद ब खुद लगा के दे दिए। अब मैं जस्ट बीच में लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टाइप मैन क्लास फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर एग्जांपल आई हैड वेब डिजाइन। ओके, ये H1 के टैग इसने खुद से लगाए। नाउ मुझे इस H1 को, मतलब ये वेब डिजाइन जो मैंने लिखा है, मुझे इसको बोल्ड करना था। तो मैंने वेब डिजाइन से पहले आई, मैं यहाँ पे मैंने बी लिखा, सी इट नोज कि मैं ये वाले बी की बात करी, मैंने एंटर किया। इसने बोल्ड के बीच में हमें लिखना है, तो हम इसका आंसर कट करके बोल्ड के बीच में डाल देंगे। नाउ इट्स बोल्ड। ओके, मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ पर पी टैग के लिए पी लिखा। मैं पी लिखी हूँ ना, तो इसके अंदर ये बाकी भी टैग है, मतलब पिक का अलग टैग होता है, पिक्चर का अलग होता है, प्री टैग होता है। तो इसमें मुझे सारे टैग्स दे दिए। मेरा काम पी टैग का है, पैराग्राफ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया या फिर मैंने इस पर एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने इसके बीच में कोई भी पैराग्राफ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल we are doing the coding language HTML. Okay, एंड देन जो है आफ्टर टाइपिंग दिस आई वांट कि मैं ये जो HTML मैंने लिखा है ये हाईलाइट हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया मार्क टैग। मैं यहाँ पर स्पीड डाल के यहाँ पे लिखती हूँ मार्क, doesn't have that tag. ओके, फिर मैंने इसको बोल्ड किया, यहाँ बी आ रहा है, मैंने एंटर किया। ये HTML जो मैंने लिखा था उसको मैंने इस बोल्ड टैग्स के बीच में डाल दिया। तो इसका फायदा ये है कि हमें क्विकली जो है ये टैग्स लगा के दे रहा है, तो हमें खुद से नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस कंट्रोल एस, या फिर हम ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में गए, फाइल के अंदर आता है एक ऑप्शन सेव का, आई गेस, वेट, या देयर वी गो। फाइल के अंदर वी हैव द ऑप्शन सेव एज या सेव। तो आई विल क्लिक ऑन एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन सेव, देन इट विल आस्क मी वेयर आई वांट टू सेव द फाइल। तो जैसा हमने पहले किया था, बेटर ये होगा कि हम जो है इसको जहाँ पर भी सेव करें हम उसके अंदर एक फोल्डर बनाए और उसके अंदर सेव करें। तो न्यू फोल्डर में गए, मैंने फोल्डर क्रिएट किया HTML का, HTML एंटर किया, एंड मैंने डबल क्लिक किया इस पर, और इसके ऊपर जो है मैंने आके कोई भी नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेब डिजाइन लिख दिया। ओके, अच्छा, अब हमें ये जो फाइल हम सेव करेंगे ना, इसमें हमें डॉट HTML लिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड टू टाइप दैट, क्योंकि इफ यू सी यहाँ नीचे ऑलरेडी HTML लिखा हुआ है, तो हम जो भी नेम लिखेंगे डॉट HTML डालने की अब जरूरत नहीं है। आई विल क्लिक ऑन सेव। नाउ द फाइल हैज बीन सेव। अब हम इसे ओपन कैसे करेंगे, हम इसको डेस्कटॉप से जाकर ओपन नहीं करेंगे। इसका इजी वे ये है कि यहाँ रन लिखा हुआ है over here on the top, this one, you click on that run, तो यहाँ रन के अंदर स्टार्ट डिबगिंग है, दिस वन, फर्स्ट वन, स्टार्ट डिबगिंग, आई विल क्लिक ऑन दैट। वंस आई क्लिक ऑन दैट, मुझसे पूछेगा कि कहाँ पर ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज में, क्रोम में, तो मैं क्रोम यूज करती हूँ, मैंने क्रोम पे क्लिक किया, आप माइक्रोसॉफ्ट एज क्लिक कर देना। नाउ जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, एंड ये आपको जो है आपके क्रोम पे लेके जाएगा। सी इट ओपन माय गूगल ओवर हियर, and if I see it's loading a bit, and then it will show me what I typed. There we go. मैंने बोल्ड के अंदर वेब डिजाइन लिखा था, H1 के अंदर इसने वो टाइप कर दिया, एंड वी आर डूइंग द कोडिंग लैंग्वेज HTML, उसने HTML को बोल्ड कर दिया। ओके, so this is basically how you will be working with VS Code. It's pretty easy. नोटपैड से ज्यादा अच्छा ये है क्योंकि ये हमें फास्ट चीजें करने दे देता है। Alright, now हमने अभी इमेज टैग किया था, लेट्स ट्राई एंड पुट अप एन इमेज। मैंने एंटर किया, अब इमेज टैग भी ये खुद से हमें लिख के दे देगा, हमें जो है बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर ये जो ये बना हुआ है ना, ये रीलोड का है और ये स्क्वायर बना हुआ है, पॉज बना हुआ है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये बेसिकली जो हमने अभी इसको रन किया ना, ये उस वजह से आ रहा है, सो इट्स नो प्रॉब्लम ऑफ दिस। मैंने यहाँ लिखा इमेज टैग, तो मैंने IMG लिखा विदाउट द मार्कअप और एनीथिंग, कोई ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं लगाया। यहाँ इमेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक किया, एंड देयर वी गो। इसमें ALT भी लिखा हुआ है, इसका हमें यूज नहीं करना है, हम जिस सोर्स के अंदर जाकर जो हमने इमेज डाउनलोड की है वो डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाती हूँ, यहाँ पर मैंने जो है लिखा HTML, एंटर किया,
मैं यहाँ HTML से कोई भी इमेज निकाल लेती हूँ HTML की। आई विल डाउनलोड इट ऑन टू माई कंप्यूटर। लेकिन मैं इसको डाउनलोड करूँगी अपने फोल्डर के अंदर, ताकि फोल्डर के अंदर हमें पिक्चर डाउनलोड करने का मकसद ये होता है कि वो जो है हमारी इमेज पे एरर बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर हमने HTML की फाइल जिस फोल्डर में सेव की है ना, हमें उसी के अंदर अपनी इमेज सेव करनी होती है। अगर हमने इमेज उस फोल्डर में सेव नहीं की, कहीं और जाकर सेव की, तो फिर जो है वो हमें इमेज पे एरर दे देगा। इट विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। ओके, किसी यहाँ HTML लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली इमेज चाहिए, आई क्लिक ऑन दैट। ये HTML का एक लोगो है। ये इमेज आ गई, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, देन यहाँ सेव इमेज एज पे क्लिक किया। The network is working a bit slow. ओके, और अब हमें कहाँ पे सेव करनी है? वी विल गो टू आवर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोल्डर क्रिएट किया था HTML का, तो मैंने डबल क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर मैंने इमेज का फॉर एग्जांपल नाम दे दिया पिक्चर। ओके, पिक्चर नेम दिया, और ये फाइल है PNG। हमें PNG लिखा हुआ हो या JPG लिखा हो, HTML लिखा हो, WEB वेब लिखा हो, हमें ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ PNG लिखा हुआ है। मैंने ये पिक्चर को कॉपी किया, इसका नेम, इसको सेव किया। ओके, इट्स गोइंग टू सेव। देन वी विल गो बैक टू आवर विजुअल स्टूडियो। यहाँ इमेज SRC है, ART को छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है, हम ART को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, इसका एक अलग मीनिंग होता है, विल टेल यू इन द फर्दर क्लासेस। इमेज SRC यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नाउ व्हाट आई विल डू, इसके अंदर मैंने अपना लिखा, जो मैंने फाइल का नेम लिखा, सो आई पेस्टेड द नेम, मैंने यहाँ डॉट डाला एंड सी, इसको खुद से वो इमेज मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि हमने उसको उस फोल्डर में सेव किया था। तो हमने जिस पिक्चर लिखा, उसने फाइंड की, हमने उस पर क्लिक कर दिया। डॉट PNG लिखना है, अगर इसने फाइंड नहीं किया था तो हम डॉट PNG लिखते हैं। ओके, इसने हमें खुद से लिख के दे दिया। I will go again in the file and I will click on save, या हम Control S भी कर सकते हैं। Now it has been saved। हमारी जो Chrome पे हमने ये खोला था, I reload that and now you can see कि इसमें ये जो image है, it put the image over here. Okay, so this is basically how you put the image tag, and this is basically how you use the Visual Studio Code. All right, so this is pretty basic. Now what we're going to do, हम इस पे थोड़ी styling पहनेंगे कि हम पेज का कलर कैसे चेंज करता है, हम ये इमेज का साइज और बड़ा कैसे कर सकते हैं। कि इमेज तो अपनी मर्जी के साइज में आई है, मुझे इसको बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे। वेब डिजाइन लिखा हुआ है, मुझे उसको पूरे पेज जितना बड़ा करना है, तो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, इसको कलर कैसे करते हैं, वी विल बी लर्निंग इन टुडेस क्लास। ऑलराइट, let me check my slides if I have anything left that I want to discuss. um, yeah, there we go. अच्छा, now there is one thing कि different types of elements होते हैं HTML के, if you see over here। एक होता है empty HTML element, एक होता है nesting, और एक होता है comments in HTML। empty और nesting क्या चीज होती है? I will be telling you that। I will go on to Google so that I can show you an example। Alright, अच्छा, now let me show you, for example, this one। अच्छा, हम जब भी कोई भी टैग ऐड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब पैराग्राफ का टैग है P, या H1 का टैग है H1, तो हम पहले उसका स्टार्टिंग टैग लगाते हैं एंड देन उसका एंडिंग टैग लगाते हैं। ये चीज तो हमें क्लियर है, राइट? तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, मतलब हम टू टैग्स लगाते हैं एक टैग बनाने के लिए। मतलब ये जैसे हम स्क्रीन में लगा रहे हैं, P टैग लगा हुआ है, पहले P लगा हुआ है, एंड में भी P लगा हुआ है। This is called nesting HTML। It's better if you write this down while listening to this। P टैग टू होते हैं, H1 टैग टू होते हैं, तो जो भी टैग के टू टैग्स हो ना, एक स्टार्ट टैग, एक एंड टैग,
उसका मतलब होता है कि वो है nesting HTML element. Okay, so this one is a nesting HTML element because it has two tags. So I'm just going to write this down over here for your ease. Nesting HTML element includes two tags, a start tag and an end tag. So yeah, इसके अंदर two tags होता है. इसकी मैं example यहाँ लिखती हूँ. Example h1 h1 के यही टैग होता है ना, हम टू लगाते हैं और हमें इसके बीच में कुछ भी लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल हेडिंग. तो ये h1 के सी, वन यहाँ पे भी टैग है ये वाला एंड वन यहाँ पर भी टैग है. तो ये टू टैग होगा. ऑलराइट, एंड देन जो है let me tell you what the other one is. Nesting हो गया and then we have our empty HTML element. ओके, अब empty HTML element क्या है? If you see over here, जब हमने हमें जब अपना जो सेंटेंस हमने लिखा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता है तो हम बीच में एक बी आर का टैग लगाते हैं. आई टोल्ड यू हसन कि बीच में एक बी आर का टैग आता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी विजुअल स्टूडियो में गई, मैंने ये वी आर डूइंग द कोडिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये अभी स्ट्रेट लाइन में. मैं अगर इसके बीच में ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ बी आर टाइप किया, ये जो बी आर टैग है अगर मैं ये लगाती हूँ और सेव करती हूँ और अगर मैं गूगल पे जाके अभी एक लाइन में अब मैं इसको रिलोड किया जैसे अभी टू लाइन्स के अंदर डिवाइड हो गया. राइट, पहले वन लाइन में था, अब टू लाइन्स में हो गया. तो बी आर टैग का कोई स्टार्टिंग टैग नहीं है, कोई एंडिंग टैग नहीं है, ओनली वन अकेला टैग है ना. बी आर हमने ओनली वन टाइम लगाया है. ये एच वन की तरह हमने इसका अलग अलग दो दो टैग नहीं लगाया. जिसका वन टैग होगा ओनली, दैट इज कॉल्ड आवर एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट. So it includes only one tag. That is it. Includes one tag only. Okay. No starting and ending tags. और इसकी एग्जाम्पल है बी आर. बी आर है, इमेज टैग है. इमेज टैग के अंदर भी ओनली वन था. इफ यू सी ओवर हियर, जब हमने यहाँ इमेज टैग लिखा तो img इज ओनली वन टैग. इट डजंट हैव टू टैग्स. ओके, इसका कोई स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, ओनली वन टैग है. सो दैट इज बेसिकली empty HTML element. Okay, you can screenshot this या फिर I will send it to you on WhatsApp. Nesting HTML and empty HTML element की definition, and you can note it down in your diary or anywhere. Alright, अच्छा. These were the basic definitions of this. Now let's move on. अच्छा, now we're going towards our CSS. मैंने आपको ये HTML element की text formatting कराई थी जिसमें हम bold लगा रहे थे, highlight, emphasize, subscript, superscript, ये सारी चीजें लगा रहे थे. Now we're going to move on to how we will do these easily. मतलब ये तो हमें बार बार लगाना पड़ता है लेकिन इसका एक easier way भी होता है. हम डिजाइन किस तरह करते हैं, स्टाइलिंग किस तरह करते हैं, उसके लिए एक न्यू कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसका नेम होता है CSS. So we will go to the next slide. CSS के three styles होते हैं. We will be doing the inline style, the easier one, because the other two are a little bit advanced for you. हम ये शुरू में two करेंगे, inline और embedded style. External style sheet will be a little more advanced and more difficult for your age. That's why हमने शुरू के two रखे हैं, inline style and embedded style. Okay, ये बिल्कुल easy है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है. Instead of showing you this, it's better कि मैं आपको जो है अपने पास इसके अंदर कराऊँ. Alright, अच्छा, now what we are doing, for example, you see, just give me 1 minute. अच्छा, there we go. For example, मैंने यहाँ पर H1 लिखा है. Okay,
एंड मैंने H1 पे एंटर किया। अब ये H1 के बीच में जो है मैं टाइप कर दिया कि दिस इज हेडिंग। ऑलराइट, मैंने H1 के टैग के अंदर टाइप कर दिया। अब ये मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस किया, आई रन इट, आई स्टार्ट डिबगिंग। तो अभी मेरे पास क्रोम के अंदर खोलेगा इसको। ओके, वी जस्ट टाइप द सिंपल हेडिंग। अभी इसके अंदर हमने कोई साइंस नहीं लगाई है, ओनली इसके अंदर नॉर्मल हेडिंग लगाई है। नाउ अब हम इस पे स्टार्ट लगाएंगे। नॉट वर्किंग, वेट। मैं इसको कहीं और से रन करती हूँ। अगर कभी रन नहीं करना दे रहा तो हम कहीं और से भी जाके, मतलब HTML के फोल्डर के अंदर से भी जाके खोल सकते हैं। और ये फिलहाल नहीं है। यहाँ वेब डिज़ाइन का जो मैंने बनाया था, मैं स्क्रीन से ओपन कर सकती हूँ, रन करना तो ज़रूरी नहीं है। रन का फ़ायदा ये है कि उसको अपडेट करता जाता है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, देयर वी गो। ये दिस इज द हेडिंग मैंने अभी लिखा था। ऑलराइट, इसने मुझे ये चीज़ दे दी, दिस इज द हेडिंग। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इसके अंदर कोई स्टाइलिंग लगाते हैं। तो अब स्टाइलिंग किस तरह लगती है, इफ आई शो यू इन द स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर H1 का जो फर्स्ट वाला टैग था ना, उसके अंदर एक लिखा है स्टाइल। हाउ विल वी डू दैट? मैं H1 का जो फर्स्ट टैग नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये जो पहला वाला टैग है, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। इस टैग के अंदर, मतलब इसके जो ग्रेटर देन जो साइन है ना, इससे पहले हमने स्पेस डाला, स्पेस के अंदर हमने लिखा स्टाइल। ओके, अब मैं जैसे ही मतलब जैसे मैंने स्टाइल टाइप किया तो उसने मुझे ये छोटा सा स्टाइल लेके दे दिया। मैंने इस पर क्लिक किया, सी इस स्टाइल लिखा, इक्वल्स टू लिखा, इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया। अब हमारा स्टाइल का जो, हम जो टैग के अंदर एक टैग डालते हैं ना, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो ये जो स्टाइल है छोटा सा, ये एट्रीब्यूट है। हमने इमेज के अंदर, इमेज टैग के अंदर लिखा था SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, वो जो है एक एट्रीब्यूट है। ये SRC लिखा हुआ, ये एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल है, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं जिसके बाद एक इक्वल्स टू आता है। ओके, तो ये स्टाइल इक्वल्स टू लिखा हुआ है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, हमें जो भी लिखना है स्टाइल के अंदर, हम वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ये जो दिस इज द हेडिंग लिखा हुआ है, इसका कलर मुझे करना है रेड। तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर, सिंपली दैट। कलर कोई बड़ी चीज नहीं लिखनी। कलर लिखा, इसने ऊपर कलर दे दिया, कलर स्कीम दे दी। ये डिफरेंट स्टाइलिंग है, मुझे ओनली कलर चाहिए। मैंने कलर पे क्लिक किया। अब इसने मुझे डिफरेंट कलर्स दिए कि आप ये कलर ले सकते हो। आई कैन जस्ट गो डाउन, इसने बहुत सारे कलर्स दे दिए। ओके, अब या तो मैं यहाँ से भी चूज कर सकती हूँ, या तो मैं खुद से रेड भी लिख सकती हूँ। जैसे मैं अगर RED रेड लिखूँ ना, तो मुझे रेड दे देगा। मैं खुद से लिख दिया, आप वहाँ से चूज भी कर सकते हो। आई क्लिक ऑन रेड, आई विल सेव दिस, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। नाउ आई विल गो ऑन गूगल टू चेक। इसने कलर किया, रीलोड किया, एंड सी दिस इज द हेडिंग जो हमने लिखा था, उसका कलर इसने रेड कर दिया। नाउ आई वांट कि ये जो साइज है फॉन्ट का, ये बड़ा हो जाए। तो व्हाट आई विल डू, ये जो मैंने कलर रेड लिखा है ना, उसके बाद आप देखो कि ये छोटा सा खुद ब खुद एक कॉमा दे देगा, ये सेमी कॉलन दे देगा। आपको उसके बाद नेक्स्ट है लिखना, उससे पहले नहीं लिखना। सेमी कॉलन के बाद क्लिक करना। यहाँ पर मैंने लिखा फॉन्ट साइज, तो मैंने फॉन्ट लिखा। और यहाँ आपको नीचे और भी आ रहा है। फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि हमें इटैलिक करना है या हमें राइटिंग उसकी चेंज करनी है कोई भी। अभी मुझे ओनली फॉन्ट साइज चेंज करना है। मैंने फॉन्ट लिखा, इसे फॉन्ट साइज दिया, मैंने इस पर क्लिक किया। इसको लिखना नहीं है, खुद ब खुद देता जाएगा। इसे लार्ज दिया है, लार्जर दिया, मीडियम, स्मॉल। हम अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट साइज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि हो जाए 200px। अब आगे px लिखना है, तो px जो है वो फॉन्ट का साइज का एक वो होता है, मेजरमेंट होती है। तो मैंने px लिखा, 200px। जो भी नंबर लिखो उसके आगे px लिखना है। क्लिक ऑन दैट, कंट्रोल एस to save। गूगल पे गए, एंड आई रीलोडेड, एंड सी दिस इज द हेडिंग का फॉन्ट साइज 200 जितना बड़ा हो गया। ओके,
यहाँ ऊपर हमारे पास इमेज थी। मैं अगर इमेज का भी मुझे साइज या कुछ बड़ा करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। इमेज का साइज बड़ा करने के लिए हमें स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही नॉर्मली भी कर सकते हैं। मैंने ये जो पिक्चर डॉट png लिखा हुआ है ना, इसके इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने लिखा विड, विड लिख दिया। इसके अंदर कोई स्टाइल का टैग नहीं डालना। विड लिखा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 कर दिया, इसका भी 200 px लिख देना। ओके, कंट्रोल एस किया, गूगल पे गए, लेट्स सी, एंड इसमें इसको बड़ा नहीं किया, मतलब 200 से ज़्यादा रखना। तो मैंने इसको कर दिया 600, सेव, सी 600 पे इसने बड़ा कर दिया। तो इमेज का कोई साइज बड़ा करना है तो हम विड्थ से करेंगे, उसमें हमें कोई स्टाइल का टैग नहीं डालना। और अगर हमें राइटिंग या कोई और चीज़ का साइज या कुछ भी बड़ा करना है वो हम स्टाइल के टैग से करेंगे। So now we have learned the color tag, okay? फॉन्ट साइज किस तरह बड़ा होता है, और हमें और भी स्टाइलिंग इसके अंदर डालते जानी है, तो हम ये सेमी कॉलम जो है उसके बाद क्लिक करेंगे एंड उसके अंदर हम डालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, मतलब राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है। मैंने फॉन्ट लिखा, इसमें मुझे फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन दिया, मैंने उस पर क्लिक किया। अभी डिफरेंट मुझे सिर्फ फॉन्ट फैमिलीज दे दिए कि हम ये चूज कर सकते हैं, डिफरेंट राइटिंग है। ओके, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल चूज किया इसके अंदर इम्पैक्ट, कोई भी राइटिंग हमने चूज करी, सेव किया कंट्रोल एस से, मैं गूगल पे जाती हूँ, ये वाली चीज चेंज होगी। ओके, दिस वन मैंने रीलोड किया एंड सी इसने इसकी राइटिंग ऐसी वाली कर दी। तो वी कैन ऑल्सो चेंज दैट। मुझे पेज का कलर चेंज करना है, पूरे पेज का, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, वेट, फॉर दैट जो है मैं H1 से पहले HTML का टैग डालूंगी। ओके, इसके लिए HTML डालना पड़ेगा। HTML का टैग डाला, नीचे इसका एंडिंग टैग डाल दिया, एंडिंग टैग डाल दिया। ये वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हमें पेज को कलर करना है तो उसके लिए हमें ये चीज डालनी पड़ेगी। ओके, अब HTML के टैग के अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट डाला। ओके, एंड स्टाइल के अंदर मैंने टाइप किया कलर या बैकग्राउंड कलर टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर। यू सी बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, आई क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ डिफरेंट कलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शोड दिस वन ऑरेंज, आई क्लिक ऑन दैट, मैंने इसको किया कंट्रोल एस। अब मैं गूगल पे आगे इसको रीलोड करती हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि पूरे बैकग्राउंड का जो कलर है इसने मुझे ऑरेंज पे कर दिया। ओके, ये HTML की पिक्चर के पीछे वाइट कलर था तो वो वही आ रहा है, लेकिन बाकी सब में से इसने ऑरेंज कर दिया। So this is basically what CSS is. अब CSS डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हमें पिक्चर की आउटलाइन को कलर करना है, हमें फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है, हमें उसका कलर चेंज करना है, हमें फॉन्ट की आउटलाइन चेंज करनी है। तो वो सारी चीजें तो मतलब इतने सारे स्टाइल हो जाएंगे, वी कैन नॉट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे जाकर न्यू टैब में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द CSS tag for font size, for example, in HTML. नहीं, what is the CSS tag for font size मैंने लिखा तो ये मुझे बता देगा खुद से, तो फिर मैं उसको स्टाइल में जाके यूज कर सकती हूँ अगर हमें कभी नहीं पता। ओके, डोंट यूज दिस। यहाँ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ हाउ टू सेट फॉन्ट साइज इन CSS लिखा हुआ है, यहाँ से चेक करता हूँ। या फिर font size in style tag, ये चीज लिखेंगे ना तो वो हमें बता देगा कि हमें उसके लिए क्या टाइप करना होता है, या फिर हम स्टाइल के टैग के अंदर जाके खुद भी चीजें जाके चेंज कर सकते हैं, वो हमें खुद ब खुद याद आ जाएंगे। अगर कभी नहीं पता चल रहा कि इस चीज को हमें इस चीज का स्टाइल लगाना है, so you can also ask me on WhatsApp। सही, वरना गूगल इट विल टेल यू। अभी फिलहाल मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, तो ये मुझे याद भी हो, बिकॉज इसने बता दिया कि अगर H1 का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फिर फॉन्ट साइज बता दिया किस तरह से लिखना। ओके, तो अगर कभी नहीं पता है कि इस चीज के लिए क्या करना है तो हम गूगल से पूछ सकते हैं, या फिर यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी एंड आई विल टेल यू कि स्टाइल के अंदर ये चीज कैसे रखना है। आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन कि स्टाइल टैग किस तरह यूज होता है फॉर द लास्ट टाइम। मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल जब पैराग्राफ टैग लिखा, इसके अंदर मैंने पैराग्राफ डाल दिया कोई भी।
ओके, कोई भी मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया इसके अंदर। एंड इसमें जो है मैं चाह रही हूँ कि जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। तो मैं सॉरी फॉर दैट द रिकॉर्डिंग स्टॉप। अच्छा, मुझे अब अगर नेक्स्ट जो है टैग डालना है, मतलब इसी स्टाइल के अंदर, तो व्हाट विल आई डू? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, सॉरी सेमी कॉलन आ रहा है, जो भी पहले हमने स्टाइल डाला उसके बाद सेमी कॉलन होगा, उसके बाद क्लिक करना है। एंड देन अब हमें एक और स्टाइल डालना है, तो मैंने कलर लिखा फॉर एग्जाम्पल। मैं कलर लिखूंगी, मुझे डिफरेंट ऑप्शन देगा, मुझे ओनली कलर चाहिए। इट विल आस्क मी व्हाट कलर है, मैंने ब्लू पे क्लिक कर दिया फॉर एग्जांपल। कंट्रोल एस किया, सेव, गूगल पे गए। एंड अब मैंने रीलोड किया, तो वी कैन सी कि इसने पैराग्राफ का जो कलर था ना, बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन रहने दिया, अंदर का कलर जो होता है फॉन्ट का, राइटिंग का जो कलर होता है वो उसने ब्लू कर दिया। ओके, so this is basically what a style tag is, what a CSS is basically. Alright, now what we are going to do, हम एक proper website create करना है with the help of artificial intelligence. So what I want you to do, stop this video here. पहले ये वाली चीज को practice करो, and afterwards you can practice what I'm going to show you after that. Okay. Alright, so what we're going to do now is that we are going to try and work on a proper HTML assignment. We are not going to do artificial intelligence right now, we're going to do it later in today's class. But first, let's see how we can basically do a proper website in HTML. So, we're going to go into Visual Studio. Remember to use Visual Studio only now. Notepad के ऊपर हम इतनी practice नहीं करते हैं क्योंकि Visual Studio is more professional version of it. Okay, तो यहाँ select the language का option आ रहा है. So now we know कि हमें HTML select करनी है यहाँ पे. I click on HTML. Now what we are basically going to do, let me show you a little assignment. Let's just say, for example, this is one website. Okay, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ऊपर heading दी है, इसमें ऊपर इस तरह से line दी हुई है. We're going to try and create something like this. It looks pretty easy. So we're going to try and create something like this. Okay, let it load so that we can see the image properly. And then we can create it by ourselves. Actually, it's not working. Wait, I'm going to show this. This is the image, and we're going to open it in the tab. Wait a minute. Okay, there we go. So this is basically what we are going to develop. अब इसके अंदर ऊपर you can see कि इस तरह से link टाइप का आ रहा है, एक header आ रहा है, navigation bar. This is your assignment to try and make something like this. Home, documentation, examples, themes, jobs, expo and blog. ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, try and create it by yourself. Use your own understanding कि what do you think कि किस तरह से develop होगा. We are going to learn कि ये between वाला जो area ये कैसे बनता है. Okay, buttons वगैरह सब. You're going to see how you can do the header. And if you don't understand it, and then you're going to message me. Alright, so अच्छा, let's start over here. हम यहाँ पर HTML में जाते हैं. हमें सबसे पहले जो है बैकग्राउंड कलर, अब लेट्स से कि हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे. ओके, तो मैंने यहाँ HTML का टैग डाला. ओके, आई डू दिस. अच्छा, अब मैं इसके अंदर HTML के अंदर मुझे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा. तो मैं HTML के टैग के अंदर आई टाइप स्टाइल, आई क्लिक ऑन दैट स्टाइल, और मैंने इसके अंदर लिख दिया बैकग्राउंड कलर, and I want it to be black so that it's more professional.
ओके। और हम उसने इसमें बूटस्ट्रैप के लिए बना हुआ है, हम बनाते हैं प्रोफेशनल हेडफोन्स के लिए। ओके, आई एम गोइंग टू सेव दिस, कंट्रोल एस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। और मैंने इसको दिया नेम हेडफोन्स। मेक श्योर यू क्रिएट अ फोल्डर, मेरे पास ऑलरेडी HTML का फोल्डर क्रिएट हुआ है, आप अपना एक फोल्डर क्रिएट करना, उसके अंदर सेव करना। सेव किया, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू see it on my screen. So it's not showing here. Wait. There we go. Here headphones target. And now we're going to see it on our screen how it looks. It's black, okay? अच्छा, now let's open Adobe Firefly ताकि हम एक अच्छी image ढूंढ सकें. So let's go to Adobe Firefly. We use this in our artificial intelligence classes. So ये AI art generator, there we go. Maybe आपको ये वापस sign in करना पड़े, so you can do that as well. ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एक्सप्लोर फायरफ्लाई पे जाते हैं। अच्छा, जो ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ है, हेडर बना हुआ है, वो आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो। तो आवर वर्क गोज मोर क्विकर फॉर दैट। Okay, taking a little time to load, so we'll have to wait. Okay, there we go. हम नीचे आते हैं, we have to create an text to image ना, so I will click on generate. हम अगर वो जो ऊपर हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उसकी इमेज भी बनवा सकते हैं, it's up to us. So I click on text to image, it's going to take me there. Now मैं यहाँ पर नीचे let's type के I want to generate uh, a नहीं a banner, for example, a banner for headphones with a futuristic background, purple and blue color. Okay, and then I'm going to type press enter. Yeah, I'll click on generate. अब ये उसको generate करेगा. I want digital art, so मैंने digital art पे click कर दिया and graphic पे click कर दिया. Okay, so let's see what it creates for us. There we go. See, हमारे लिए इस तरह का एक बैनर जनरेट कर दिया. I can see if it's recording. Yeah, it is. अच्छा, अब इसने हमारे लिए इस तरह का बैनर जनरेट कर दिया. अगर if you don't like it, we can also change it. Okay, तो मैं अगर इस ग्राफिक से हटा देती हूँ इसको, so it's going to generate it again. For example, remove it. Let's see अभी क्या जनरेट करता है. If you don't like it, then you can keep changing it और भी लिख सकते हो, so that it creates a better version of it. Let's see. Okay, there we go. For example, I want this one. Okay, so I will download the picture एंड इसको हमें सेव उस फोल्डर में करना है जहाँ पर हमने अपनी HTML की फाइल सेव की है. इसको कंटिन्यू करोगे ताकि आपको सेव करना है. ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा सेव करने में क्योंकि ये हम अडोब से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये हाई क्वालिटी इमेज देगा वहाँ से. एंड देयर वी गो. ओके, देयर HTML का जो फोल्डर है उसी के अंदर. अच्छा, इसका नेम हम छोटा सा लिख देते हैं, तो मैंने हेड लिख दिया फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंटर किया, ये सेव हो गया. इसकी फाइल का नाम यू कैन सी .jpg लिखा हुआ है, head.jpg. ओके, ये चीज याद रखनी है. हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और मैंने यहाँ नीचे HTML के टैग के नीचे मैंने इमेज का टैग लगाया img. आई प्रेस एंटर. ये ALT का कोई काम नहीं है, यू कैन रिमूव दैट. SRC, ये जो दोनों इन्वर्टेड कॉमास है इसके बीच में मैंने इमेज का नाम जो लिखा था हेड, उसी इसने इसको फाइंड कर लिया, head.jpg. आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, कंट्रोल एस किया. नाउ लेट्स सी इट ऑन द गूगल. आई रीलोडेड एंड सी. अब इसने मुझे बहुत बड़ी इमेज दे दिया. ओके, तो मुझे इस इमेज को जो है थोड़ा स्मॉल करना होगा क्योंकि हमें इस टाइप की पिक्चर बनानी है, लाइक इस
राइट पे आ रहा हो और छोटी इमेज आ रही हो थोड़ी। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम ये जो हेड और जेपीजी लिखा हुआ है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद आएंगे। अब इमेज को छोटा करने के लिए हमें स्टाइल की टैग की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली आके लिख सकते हैं। तो ये जो मार्कअप है ना, उससे पहले हमने लिखा विड, क्लिक किया, इसकी विड मैंने 200 px कर दी, कंट्रोल एस, रीलोड किया। अब ये बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो मैं इसको अबाउट 500 कर देती हूँ। ये px लिखना जरूरी है, तो आई थिंक 400, ओके, 400 विल बी बेटर देयर। अच्छा, अब मुझे इसको, ये अभी लेफ्ट साइड पे है, लेकिन हमें इसको ये हमें चाहिए राइट साइड पे, पीसी ओवर हियर। राइट साइड पे लाने के लिए इसके लिए एक छोटा सा न्यू टैग इंट्रोड्यूस होगा, उसका नाम है div टैग। ओके, div का मतलब होता है एक कंटेनर, जिसके अंदर, मतलब div टैग के अंदर हम एक और टैग डाल सकते हैं, फिर एक और div टैग के अंदर एक और टैग डाल सकते हैं। तो div टैग इज अ कंटेनर। ओके, वो जैसे नॉर्मल टैग है, दैट इज अ कंटेनर, वी डोंट नीड इट एवरीवेयर, लेकिन कहीं कहीं हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने div लिखा, div, इमेज टैग से पहले लिखिए div, एंटर किया। ये देखो, div का स्टार्टिंग टैग है, div का एंडिंग टैग है। मैं बाकी का जितना भी टैग था ना, वो इसके अंदर डाल देती हूँ, div के अंदर। ओके, अब ये जो div वाला टैग है, div है, इसके अंदर मैं आऊंगी, पहले वाले टैग के अंदर स्पेस दिया और इसमें मैंने लिखा स्टाइल। स्टाइल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन वाले TEXT डैश अलाइन, आई क्लिक ऑन दैट। और हमें ये चाहिए राइट साइड पे, तो मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल एस किया, रीलोड किया। नाउ यू कैन सी द इमेज इज ऑन द राइट साइड। div टैग हमने इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम नॉर्मल इमेज टैग के अंदर करती तो वो वर्क नहीं करता है, इसलिए div टैग का फायदा ये है। ओके, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, दैट्स आई एम नॉट टीचिंग यू व्हाट इट बेसिकली डज, लेकिन दैट div टैग जो है वो हम एक कंटेनर की तरह यूज करते हैं। ओके, ये हमारा हेडफोन राइट पे आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी, यहाँ बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह हेडफोन्स लिखेंगे। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर आती हूँ, ओके, एंड मैंने यहाँ लिखा H1, एंटर किया। या हमें, हाँ, H1 लिखा और इसमें जो है मैंने लिख दिया हेडफोन। और इसका कलर मुझे रखना है, लेट्स से कि मैं इसका कलर एक ब्लू काइंड ऑफ कर देती हूँ। तो आई विल कम इन द फर्स्ट H1 टैग, स्पेस किया, स्टाइल लिखा, स्टाइल पे क्लिक किया, एंड नाउ मैंने यहाँ लिखा कलर। कलर पे जब क्लिक करूंगी तो ये मुझे डिफरेंट कलर से है, तो मैं नीचे जाके वट एवर कलर आई वांट मैं उसको सर्च कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वांट स्काई, लेकिन अगर मुझे कलर वैसा एग्जैक्ट नहीं मिल रहा ना, तो ये जो ब्लू ब्लू बना हुआ है ना स्क्वायर, इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो मुझे इस तरह का वो दे देगा कलर सर्च, जहाँ पर जाके फाइंड कर सकती हूँ परफेक्ट कलर। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज व्हाट आई वांट। ओके, देन जो है मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ सेव के लिए, रीलोड किया, तो यू कैन सी ये हेडफोन्स यहाँ लिखा हुआ आ गया। देन लेट्स से कि मुझे, अच्छा, ये H1 टाइप जो है ना, मैं इसको यहाँ से हटा के इमेज के ऊपर डाल रही हूँ, ताकि वो इमेज के बिल्कुल बराबर में आ जाए। ओके, देयर, सेव किया मैंने, बस नीचे से उठा के इमेज के टैग के ऊपर पेस्ट कर दिया, रीलोड किया, तो अभी ऊपर आ गया। ओके, तो ऊपर पेस्ट करेंगे ना, तो ये ऊपर लिखा हुआ आएगा इमेज का। अब जो भी हम कर रहे हैं इमेज के ऊपर कर रहे हैं, इमेज के नीचे करोगे तो वो फिर इमेज के नीचे नजर आ रहा होगा। ओके, अच्छा, अब हमें एक पैराग्राफ लिखना है, दैट्स व्हाट आई थिंक, लेट्स सी, हाँ, अब हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो फॉर दैट मैं यहाँ पर पी टैग डालती हूँ, एंटर किया, और पैराग्राफ के अंदर मैं चैट जीपीटी से कोई भी छोटा सा हेडफोन्स का एक पैराग्राफ लिखवा देती हूँ। तो लेट्स गो ऑन हियर, राइट paragraph about headphones. Okay, let's see if it writes for us. There we go. हमें लिख के दे रहा है यहाँ से, तो we'll just copy it, हमें जितना चाहिए। तो उसने बहुत बड़ा लिख दिया। ओके, there, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर पेस्ट किया ये, ओके, सेव किया। अब गूगल पे जाकर चेक करते हैं, आई रीलोड, और पैराग्राफ हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो ब्लैक है।
तो हमें उसको ब्लैक से करना है वाइट या पर्पल, so लेट्स से मुझे वाइट करना है। ये करने के लिए हमें पी टैग के अंदर जाना है, फर्स्ट वाले पी टैग में स्पेस दिया, स्टाइल लिखा, उस पर क्लिक किया, एंड I type color and I choose white. मैंने white लिख दिया था, फिर Control S and now I'll do this. So अब if you see कि पैराग्राफ जो है ना बहुत आगे तक जा रहा है, ओके। हमें पैराग्राफ इतना चाहिए, इतना फा रहा हो, मतलब एक छोटे से कॉर्नर में आ रहा हो, ये बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम इसके अंदर बी आर टैग लगा सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये फास्ट पेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए, या फिर ये हाई क्वालिटी पे आके स्टॉप हो जाए। तो हम इसके लिए बी आर टैग लगाते हैं, if you remember। तो हाई क्वालिटी रखा हुआ है, यहाँ पर आकर मैंने लगा दिया बी आर लिखूंगी ना, तो ये मुझे खुद से सजेस्ट कर देगा। आई टाइप बी आर, देन थोड़ा सा और आगे जाता है, अगेन हियर आई टाइप बी आर, ओके। आगे थोड़ा सा और गए, बी आर, कंट्रोल एस किया, रीलोड करता। तो अभी थोड़ा सा ही सही हुआ, so we will have to keep doing the br tag ताकि ये सही हो जाए, okay? So let's do that, let's see now। अच्छा, ये बिल्कुल प्रॉपरली बी आर मैंने नहीं लगाया, आगे पीछे लगाए, यू विल हैव टू डू इट प्रॉपरली। तो ये बी आर लगा दिया अगेन, लेट्स सी, आई हैव टू डू इट हियर टू। बी आर, ये मैंने बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं किया, तो ये सही से अलाइन नहीं हो रहा, बट ट्राई एंड डू इट प्रॉपरली। तो ये थोड़ा सा अजीब सा कर दिया मैंने। हमें बिल्कुल इस टाइप का अलाइन चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगा के इसको बी आर डालना पड़ेगा, ओके। देयर वी गो। तो इस टाइप का हमारा पैराग्राफ आ गया, या हमारी इमेज आ गई। अब हमें इसके नीचे 2 बटन्स चाहिए इस टाइप के। So we're going to see how we can do the buttons. Okay. Acha, now what I want you to do, pause over here and try and create something like this, and also try and create a little header like this with by yourself. YouTube से देख के, Google से देख के, या फिर ChatGPT की help से. In the next class, I will show you how we basically can do it by ourselves. Okay.